Hello, good morning, students. So, today we are going to read our chapter 15 of science. The chapter name is Improvement in Food Resources. So, let's have a look in the chapter first. We know that all living organisms need food. Food supplies protein, carbohydrate, fats, vitamins, and minerals, all of which we require for body development, growth, and health. Both plants and animals are major resources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we cannot make it with the current levels of production? India is a very populous country. Our population is more than 1 billion people and it's still growing. As food for growing population, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope of increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. We have had the Green Revolution, which contributed to increase the food grain production. We have also had the White Revolution, which has led to a better and more efficient use for well as availability of milk. However, this revolution means that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it. Hence, there is a need for a sustainable practices in the agriculture and animal husbandry. Also, simply increasing a grain production for short storage in a warehouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. The majority of our population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary. To combat the problem of hunger, scientific management practices should be undertaken. To obtain high yields from the farms for sustained livelihoods, one should undertake mixed farming, intercropping, and integrated farming practices. For example, combine agriculture with the livestock, poultry, fisheries, beekeeping. This question has become how do we increase the yields of crops and livestock. देखिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के बारे में जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें ये बताया गया है किस तरह से डे बाय डे हमारा जो फूड स्ट्रक्चर है या फूड रिसोर्स है ये किस तरह से डे बाय डे चेंज होता चला गया. जैसे अगर मैं सिंपली एक एग्जाम्पल दूँ आपको, इट्स एन वेरी ओल्ड एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू. देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, ज़्यादातर खाना जो होता था हम कच्चा खाते थे. तब इस बात का ज्ञान नहीं होता था लोगों को कि उसे पका के भी खाया जा सकता है. धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें चेंज आया. जब फायर इन्वेंट हुआ लोगों ने उसे पका के खाना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, फूड चेंज होने लगा. फूड जो रिसोर्स है वो चेंज होने लगा. कई जगह वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन हुए, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हुए. फूड्स की टाइप में चेंजेस आए. तो इस तरह से कई सारे चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे. अब जैसे कि यहाँ पे कई सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है, राइट. जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, इट वॉज रिलेटेड टू द milk, and the green revolution which is related to the food grain production. तो इस तरह से कई सारे रिवॉल्यूशन हुए, कई सारी चीज़ें आई. और जिस तरह से आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हमें बहुत ज़्यादा खाने की यानी फूड की ज़रूरत है. तो प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए कि वो सबको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे प्रोडक्शन जो है बहुत मैक्सिमाइज़ किया जा सके. तो इन सारी चीज़ों के क्या है, कई सारे तरीके निकाले गए. अब कई तरह की फार्मिंग की जाती है, जैसे कि कंबाइन एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, बी कीपिंग है. तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है मल्टीपली ट्राई की गई हैं. अब नाउ इफ यू आर सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है. Cereals such as wheat, rice, maize, mills, and the sorghum provide as a carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, black gram, pea, green gram, pigeon pea, lentils provide us with the protein, and oilseeds including a soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed, and the sunflower provide us with the necessary fat. Vegetables, spices, and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of proteins, carbohydrates, and fats. In addition to this, fooder crops like
barzenes, oats, and the certain grass are raised as food for a livestock. The Kharif season from the month of June to the October, and some of the crops are grown in the winter season called the Rabi seasons from November to April. Paddy, soybean, pigeon, pea, maize, cotton, green gram, and the black gram are Kharif crops, whereas the wheat, gram, peas, mustard, linseed are the Rabi crops. In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains. 1952 to 2010, with the only 25% increase in the cultivable land area. How has this increase in the production been achieved? If we think the practice involved in farming, we can see that we can divide into 3 stages. The first is the choice of the seeds of planting. The second is nurturing of the crop plants. The third is the protection of growing and harvested crops from a loss. Thus, the major groups of activity for improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, crop protection मैनेजमेंट. अब देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स किस तरह से हमारी जो है क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई है कि कई तरह की चीज़ें जो है हम खाते हैं, कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है. तो इस तरह से यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है. अब प्रोडक्शन को जो है अगर हम बढ़ाएं तो बढ़ाने के लिए हमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. तो किस तरह की इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है, तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं. पहला, क्रॉप की वेराइटी में इम्प्रूवमेंट की जाए. सपोज़ मान लीजिए जैसा कि हम जानते हैं ये जो कि आज हम जो भी चावल खा रहे हैं, ठीक है, वो किसी एक टाइप का या एक नाम का नहीं है. आपको मल्टीपल टाइप के राइस जो है खाने के लिए मिलेंगे. तो क्रॉप की वैरायटी, क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट, मतलब कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज किस तरह से उगाया जा सके, किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके ताकि प्रोडक्शन दिन बाई दिन बढ़ते चले जाए. नाउ सी द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अब फसलों की जो है प्रोटेक्शन कैसे की जाए, लाइक जैसे उसमें कई तरह के कीड़े लग जाते हैं या कई बीमारियां लग जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों से जो है फसलों को किस तरह से बचाई जाए, ये इट कम्स अंडर द क्रॉप प्रोडक्शन. it's a protection. So let's see, the first point is the crop variety improvement. This approach depends on the finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or the strains of a crops can be selected by a breeding for various useful characteristics such as the disease resistance, response to the fertilizer, product quality, and the high yields. One way of the incorporating a desirable characters into a crop variety is by hybridization. Hybridization refers to the crossing between the generally. अब देखिए ये जो पूरा है crop variety improvement, मैं आपको simply बोल के समझा देती हूँ, ये आपको काफ़ी easily समझ में आ जाएगा. There is nothing thing. अब देखिए क्या होता है, जो ये हमारा पॉइंट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या हुआ है, देखिए क्या होता है जब 2 पेड़ों को क्रॉस किया जाए, ठीक है, और उनकी बर्डिंग की जाए, तो क्या होगा, इससे जो है हमें एक नया वैरायटी मिलेगा. सपोज़ मान लीजिए HMT चावल का जो ट्री प्लांट है और सपोज़ मैंने बासमती के प्लांट को क्रॉस किया, तो उससे एक नया वैरायटी ऑफ राइस मुझे मिलेगा, राइट. तो एक हाई ईल्ड से लो ईल्ड या लो ईल्ड से हाई ईल्ड, इस तरह की क्रॉस करने से हमें एक नई वैरायटी मिलेगी. तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में बेसिकली यही किया गया है ताकि हमें कई तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो मिल सके और हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें. अब एक तरह का राइस हो रहा है, लेकिन उसी में अगर हम मल्टीपल टाइप के राइस अगर हम जो है प्रोड्यूस करना शुरू करें, तो क्या होगा, इसकी खपत भी मल्टीपल टाइप से होगी, मल्टीपल लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें खाएंगे. तो बेसिकली क्या होगा, हमें किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अलग अलग प्रोडक्शन पे अलग अलग तरीके से ध्यान दिया जाएगा, अलग अलग खेती की जाएगी, तो उसकी प्रोडक्शन को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. तो लेट्स सी हियर. अब देखिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि किस तरह से क्या क्या सिचुएशंस को देखा जाता है. तो इस चीज़ को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. नाउ विल सी द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, चलिए हम वो देखते हैं. In India, as in many other agriculture-based countries, farming ranges from small to very large farms. Different farmers thus have a more or less land, money, and access to the information and technologies. In short, it is the money or financial condition that allow farmers to take up different farming practices and the agricultural technologies. There is a correlation between the higher inputs and the yields. Thus, the farmer's purchasing capacity for input decides the cropping system and the production practices. Therefore, production practices can be at different levels. They include no-cost production, low-cost production, and the high-cost production practices.
अब देखिए जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है डिफरेंट लेवल के जो प्रोडक्शन है उनको हाई कॉस्ट प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए या लो कॉस्ट प्रोडक्शन है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। इस तरह की डिफरेंट फार्मर्स ने किस तरह से क्या किया है, किस तरह से चीज़ें, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, उसमें इसमें बारे में बताया गया है। अब देखिए जो पहला पॉइंट है इसके अंडर वो क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंडर क्या चीज़ें आ रही हैं, चलिए अब इसे पढ़ के समझते हैं। Just as we need food for development, growth and well-being, plants also require a nutrient for growth, nutrient and supplied to plants by air, water and soil. There are several nutrients which are essential for plants. Air supplies carbon and oxygen. Hydrogen comes from water and soil supplies the other 13 nutrient to plants. Amongst these, some are required in a large quantities and are therefore called macronutrients. The other nutrients are used by plants in a small quantities and are therefore called micronutrients. Deficiency of these nutrients affect the physiological process in the plants, including reproduction, growth, susceptibility to the disease, and to increase the yield. And soil can be enriched by the supplying these nutrients in the form of manure and fertilizer. अब देखिए जो यहाँ पे बताया गया है न्यूट्रिएंट की बात, जिस तरह से हम जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बींग को जीने के लिए, खाने के लिए एक अच्छे खाने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ उसे कई सारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इसी तरह प्लांट्स के भी साथ होता है, प्लांट को नॉर्मल सॉइल में रहने के बावजूद भी कई तरह के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि उसे पूरा जो है न्यूट्रिशन मिल सके, पूरी तरह से वो फर्टिलाइज होके ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे वो अपनी क्या कर सके, उसकी ग्रोथ कर सके। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट जो है इस तरह से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है मैन्योर की। मैन्योर कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाइज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and the plant waste. Manure helps in enriching a soil with a nutrient and organic matter and to increasing a soil fertility. The bulk of organic matter in the manure helps in improving the soil structure. This involves the increasing the water holding capacity in sandy soils. In clayey soils, there are large quantity of organic matter help in the drainage and in avoiding a water logging. In using a manure, we use a biological waste material, which is the advantage is in the protecting our environment from excessive use of the fertilizer. Using a biological waste material is also a way of recycling farm waste. Based on this kind of biological material, used manure can be classified as compost and the vermicompost. The process in which the farm waste material like a livestock excreta, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc., decomposed in the pits is known as the composting. The compost is rich in organic matter and the nutrient compost is also prepared by using earthworms to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called a vermicompost. Green manure. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sun, hemp or gar are grown and then merged by ploughing them into the soil. These green plants thus turn into the green manure which helps in the enriching the soil in nitrogen and the phosphorus. अब देखिए यहाँ पे जो मैन्योर की बात की गई है, मैन्योर ये जो है खाद जो है, जो फर्टिलाइज़र हम ऊपर से देते हैं, राइट, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है, बट नेचुरल वे में किस तरह से सॉइल को फर्टिलाइज़ किया जा सके यहाँ पे इसकी बात की गई है। तो आपको पता होगा कि जो गोबर है, रेत है या कई तरह के जो डिकम्पोजर हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल्स हैं या फूड्स हैं या फिर जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है या अदर टाइप के एक्सक्रीटिंग मटेरियल्स हैं, इन सारी चीज़ों को सॉइल में मिक्स करके क्या किया जाता है, उन्हें डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, बेसिकली सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस में होता है। तो नेचुरली क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है। तो इन सारी तरीक़ों से जो है यहाँ पे मैन्योर में बताया गया है कि जो है फर्टिलिटी कैपेसिटी जो है सॉइल की वो इस तरह से बढ़ाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बात की गई है। तो फर्टिलाइजर्स आर द कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, phosphorus and the potassium. They are used to ensure a good vegetative growth, giving rise to a healthy plants. Fertilizers are the factor in the high yields of a high-cost farming. Fertilizer should be applied carefully in terms of proper dose, time and the observing
pre and post application precaution for their complete utilization. For example, sometimes fertilizer get washed away due to the excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants. This excess fertilizer then leads to the water pollution. Also, we have seen in the previous chapter the continuous use of fertilizer in the area can destroy a soil fertility. अब देखिए जब यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइज़र जो है जो ऊपर से आप डालते हैं सॉइल्स में, इससे क्या होता है कई बार जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कई जगह एक्सेसिव मटेरियल गिर जाता है, तो इस वजह से भी प्लांट्स को नुकसान होता है। प्लस इसके साथ साथ जब भी हम क्या करते हैं खाद डालते हैं और हमने सपोज इरीगेशन यानी पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया, तो क्या होता है मिट्टी उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है और वो पानी के साथ घुल के बह के निकल जाता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई तरीके के फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया जाता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके नेचुरली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके ताकि उसकी ग्रोथ बनी रहे और मिट्टी का पॉल्यूशन भी जो है वो जो सॉइल पॉल्यूशन है वो ना हो। तो इस तरह से बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है। नाउ लेट्स सी द इरीगेशन। अब इरीगेशन जो है बेसिकली यहाँ पे बताया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ कर रही हूँ। इसमें इरीगेशन में बेसिकली बताया गया है, आपने देखा है कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ज़मीन है पर वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी नीचे होने की वजह से पानी जो है वहाँ पे नहीं होता है। तो अब इस केस में क्या किया जाता है कि वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। अगर वाटर रिजर्वेयर जो है वो काफ़ी डाउन है, वाटर लेवल काफ़ी डाउन है, तो रिवर से या फिर कैनल से या फिर वेल्स से ये टैंक्स के थ्रू वहाँ पे पानी भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इरीगेशन। अगर कोई पाइप सपोज कहीं ज़मीन बहुत ज़्यादा है पर वहाँ पानी नहीं है तो क्या वहाँ खेती नहीं होगी? ऑफ कोर्स खेती की जाएगी। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, कैनल से या कहीं पॉन्ड से या रिवर से वहाँ से क्या की जाती है, वाटर पाइपलाइन को बिछाया जाता है और वहाँ तक सप्लाई किया जाता है वाटर को, ताकि पानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और फार्मिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से की जा सके। तो ये है इरीगेशन। यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, कई पॉइंट्स बताए गए जिसे पढ़ने के बाद आपको यही चीज़ें समझनी है। तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। Now let's see the cropping patterns. Different ways of growing crops can be used to give a maximum benefits. Mixed cropping is growing two more crops simultaneously on the same pieces of land. अब देखिए क्रॉपिंग पैटर्न में जो बेसिकली बताया गया है मैं उसे आपको रीड करके समझा देती हूँ एंड यू जस्ट रीड इट आउट वंस एंड यू विल गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सी हियर द थिंग इज़, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है जब फसल उगाई जाती है तो कई बार क्या होता है साथ में दो फसलें उगाई जाती हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार ये ज़रूरी है कि किसी भी फसल के साथ कोई भी फसल उगा दी जाए। द नेसेसरी पॉइंट इज़ कि किसी फसल के साथ दूसरी फसल को उगाया जा सकता है, यानी जो दो फसलें यानी जो दो क्रॉप्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके उसके एनवायरनमेंट में, उसकी चीज़ों में, वही क्रॉप्स को एक साथ उगाया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सपोज मान लो मैंने गेहूँ को उगाया है या और फिर मैंने दूसरा क्रॉप भी उसके साथ उगा दिया जो कि एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई एक जो है क्रॉप वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और एक ही लिव करेगा। तो इस तरह की चीज़ नहीं की जाती है जो क्रॉपिंग पैटर्न में हो। कभी भी जब भी हम मिक्स फार्मिंग करते हैं, बेसिकली जब भी हम दो क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं तो ऐसे ही क्रॉप्स को उगाया जाता है जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें। सपोज़ मान लीजिए मैंने अभी गेहूं की खेती की है, ओके, और गेहूं की खेती के साथ साथ जो है उसके साथ सरसों उगाया जा सकता है। तो अभी क्या होगा, सरसों और गेहूं को एक साथ उगाया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं और ये अच्छे से लिव भी कर सकते हैं। तो मुझे डबल प्रॉफिट होगा, यानी जब मैं गेहूं सेल करूँगी इसके साथ साथ ही क्या होगा, मैं राई को भी सेल कर सकती हूँ। तो मस्टर्ड और वीट ये दोनों से क्या हो रहा है, डबल फ़ायदे हो रहे हैं, यानी डबल प्रॉफिट का काम हो रहा है। बट इसके साथ साथ कई फसलें ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या होता है, एक तरह का इट्स लाइक एन बैटिंग, मतलब अगर आपकी कोई क्रॉप जो है वो अच्छी हो गई तो इट्स बेटर एंड गुड, बट अगर वो नहीं हो रही है तो क्या होगा, वो आपका नुकसान बहुत कर देगी। तो ऐसे टाइम पे किसान क्या करते हैं कि एक साथ दो फसलें उगाते हैं, यानी एक अगर ख़राब भी हो गई तो कम से कम एक से वो उतना बेनिफिट कमा सके। तो इसके लिए जो है मिक्स फार्मिंग की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी एंड द क्रॉप ड्यूरेशन एंड रोटेशन, ये सारी चीज़ें
डिसाइड की जाती है। तो यही जो है आपको क्रॉपिंग पैटर्न में बताया गया है। अब देखिए, जब क्रॉप प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट की बात की गई है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ मैंने कोई क्रॉप जो है उसे प्लांट कर दिया, इसके बाद क्या मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गया है? नहीं, बल्कि इसमें के बाद क्या होने वाला है, जो भी क्रॉप मैंने प्रोड्यूस किया है उसके बाद मुझे उस पर ध्यान देना है, यानी प्रॉपर टाइम पे मुझे उस पर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र और ये सारी चीज़ों का छिड़काव करना है, ताकि क्या हो, क्रॉप का प्रोटेक्शन हो, क्रॉप जो है वो इंसेक्ट्स की वजह से ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंडर आती है। मतलब उसे प्रॉपर टाइम पे जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें टाइम से देना, ताकि प्लांट्स में किसी भी तरह की कोई डिसीज़ जो है वो कॉज ना कर सके, जो पैथोजेंस है वो उसमें कॉज ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम की जाती है। तो दिस विल कम अंडर द क्रॉप प्रोटेक्शन। नाउ विल सी द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब देखिए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ हमने बहुत सारा जो है ग्रेन प्रोड्यूस कर लिया, राइट। उसके बाद क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी तक वो अच्छा रह सके, इसके लिए हमें उसे स्टोरेज में रखना होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, 2 एग्जांपल दूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। देखिए, जो वेजिटेबल्स होते हैं लाइक पोटैटोज़, अनियंस एंड दी अदर वेजिटेबल्स, ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर, अगर मैंने इसे बहुत सारा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो बहुत सारा प्रोड्यूस होने के बाद ये तो कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मैं इसे सेल आउट कर सकूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कई जगह जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट तौर पर कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है हम जाके वहाँ पर स्टोर करके रख देते हैं विद अ प्रॉपर रेंट। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सब्जियां फ्रेश रह पाएंगी। यानी जो भी ऐसा मटेरियल है जो कि ख़राब हो सकता है, उसे हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रह सकेंगे और रहने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सकेंगे। लेकिन अगर यही बात मैं लेंटिल्स की करूँ या फिर जो वीट है या राइस की करूँ, तो ये चीज़ मैं इनके साथ नहीं कर सकती। इन्हें जो है कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन्हें ड्राई स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए जो भी गोडाउंस होते हैं, जब भी मान लो अगर मेरी वीट की जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, काफ़ी प्रोडक्शन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, जितना मटेरियल जो है मैं बेच सकती हूँ मैं बेचूँगी। उसके बाद क्या होगा, इवन आफ्टर द सेलिंग, जो आपसे ख़रीद रहा है वो भी इसे कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो जो गोडाउंस होते हैं जहाँ पे ड्राई मार्केट है, वहाँ पे क्या किया जाता है, जाके उसे स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स किया जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ताकि बेसिकली जो ये ग्रेन्स होती है इन्हें जो है अनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादातर जो है ड्राई एनवायरनमेंट इन्हें चाहिए होता है, तो इसलिए इन्हें ड्राई स्टोरेज में रखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। लेट्स सी द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसके अंदर ये चीज़ आती है कि आपने देखा होगा कई सारे डॉग्स हैं या कैटल्स हैं, उनकी क्या की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है। उनके क्रॉस करने के बाद उनकी जो ब्रीड्स आते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से इसकी भी अपनी ही फार्मिंग होती है। तो चलिए, हम जो हमारा पहला टॉपिक है कैटल फार्मिंग, उसको हम पढ़ते हैं। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पसेस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क। अब देखिए, अब जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब क्या होता है, पहले ज़माने में आपने सुना होगा कि जो बैल है, बैलगाड़ियों का यूज़ करते थे और बैल उसे चलाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा हो जाने की वजह से अब हम बैलगाड़ियों का यूज़ नहीं करते। खेती में भी पहले बैलों का यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ जुताई। लेकिन अब क्या है, वो चीज़ हो पा रही है क्या, अब कल्टीवेशन जो है बेसिकली किसके हेल्प से हो रहा है, ट्रैक्टर्स की हेल्प से हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ऑक्स का काम जो है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। लेकिन अब जो है इस चीज़ का यूज़ बीफ के लिए किया जाता है, लाइक मीट के लिए किया जाता है। तो कैटल फार्मिंग में बेसिकली इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो एग्रीकल्चर पर्पज़ से इसे किया जाता था, और दूसरा जो है डेयरी प्रोडक्ट के लिए। जब भी जो है काऊ को अगर रखा जाता था तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए रखा जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ, कैटल फार्मिंग की गई। मतलब आपने एक साथ सपोज इस बिज़नेस को जब आपने शुरू किया तो आपने 10 गाय रखी हैं और कुछ बैल रखे हैं। इसके बाद क्या होगा, इनकी फैमिली डे बाय डे मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो इस तरह से कैटल फार्मिंग की जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आ गया है। और जब भी कैटल फार्मिंग की जाती है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट दिया जाता है। जो भी उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्हें दी जाती है, ताकि बहुत ही अच्छी तरह से जो है उसकी फार्मिंग की जा सके और उनका भी ध्यान रखा जा सके।
अब देखिए पोल्ट्री फार्मिंग की बात जब की जा रही है तो पोल्ट्री फार्मिंग, अगर मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन जो है, अभी आपको ये फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, सपोज़ मान लीजिए किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 1 लाख है, 1 लाख में से 50,000 पीपल जो है वो वेजिटेरियन है, बट 50,000 पीपल जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। अब नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए क्या एक लिमिटेड अमाउंट में जो हैंस हैं या फिर जो भी चिकन्स हैं वो क्या इनफ होंगे? नहीं, उनके प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर 50,000 तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या की जाती है, इसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो चिकन्स होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी बड़े किए जाते हैं और ज़्यादा से जल्दी क्या किया जाता है, एग्स को प्रोड्यूस किया जाता है लोगों की डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। इसके में भी कई टाइप की चीज़ें जो है, कई डिफरेंट टाइप के चिकन्स को जो है उनकी वेराइटियों को इम्प्रूव किया जाता है, तो उनकी क्रॉस करके उनके जो वेराइटीज़ को है बेसिकली उनसे इम्प्रूव किया जाता है। तो इट कम्स अंडर द पोल्ट्री फार्मिंग। अब जो एग एंड बॉयलर का प्रोडक्शन है, अब जो एग्स हैं, अगर एग्स की डिमांड पूरी करनी है तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, जो बॉयलर चिकन्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से विटामिन रिच सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फूड दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें और इसके साथ साथ वो एग्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है चिकन्स की बॉयलर्स चिकन्स के साथ की जाती है। फ़िश प्रोडक्शन जो है वो भी फ़िश बेसिकली फ़िश फार्मिंग से है। आपने सुना होगा जो है रिवर्स या सी फूड्स होते हैं वहाँ पे भी आपको फ़िश मिलती है, लेकिन कई जगह पे क्या की जाती है, फ़िश फार्मिंग की जाती है। यानी टैंक्स को बनाया जाता है, वहाँ पे फ़िशेस के एग्स को डाला जाता है और उसे बड़ा किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, और भी फ़िशेस वो अपनी फैमिली को मल्टीप्लाई करती चली जाती है। तो फ़िश फार्मिंग भी बेसिकली इसी से रिलेटेड है, यानी खाने की सप्लाई से। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द फूड। जो डिमांड है दिन ब दिन, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जाएगी। तो उस डिमांड की पूर्ति के लिए, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो फ़िश प्रोडक्शन भी इस तरह से यूज़ हो रहा है ना। मरीन फ़िशेस के बारे में बात की गई, तो देखिए मरीन फ़िशेस के बारे में भी बात यहाँ पे बताया गया कि कितने कितने टाइप में मरीन में यानी जो सी लेवल फूड्स हैं उसमें किस किस तरह के फूड्स आपको मिल सकते हैं, मतलब किस किस तरह के एनिमल्स आपको खाने फ़िशेस जो है खाने के लिए मिल सकती है। इनलैंड फिशरीज़ की बात करें तो जो इनलैंड फिशरी है उसमें किस किस तरह की फ़िशेस जो है वो आपको मिल सकती है, इसमें उसके बारे में बताया गया है। नाउ इफ विल सी द बी कीपिंग। अगर बी कीपिंग की बात करें, अब मान लीजिए जो शहद है वो हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है, कॉस्मेटिक पर्पस, मेडिकेशनल पर्पस और हमारे फूड पर्पस से। तो क्या इसकी डिमांड को नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि रैंडमली कहीं पे भी जहाँ ये छत्ता लगा रही है वहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या इतने से पूरी डिमांड कंप्लीट हो पाएगी? नहीं, कहीं ना कहीं इसकी फार्मिंग करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे क्या हो, शहद को प्रोड्यूस किया जा सके और डिमांड्स की रिक्वायरमेंट जो है उसको कंप्लीट की जा सके, सप्लाई को कंप्लीट की जा सके। तो इसलिए जो है बी फार्मिंग की जाती है। एक पर्टिकुलर जगह पे जो है कई तरह की वैरायटीज़ की बीज को रखा जाता है और वो क्या होती है, डे बाई डे अपनी फैमिली को मल्टीप्लाई करती है और एक पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ और क्वांटिटी ऑफ हनी जो है वो प्रोड्यूस करके हमें देती है। तो इस तरह से बी फार्मिंग की जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जितने भी एग्जांपल्स थे और सारी चीज़ें थी ये फूड से रिलेटेड थी कि किस तरह से हमने फूड सप्लाई को इम्प्रूव किया है। मतलब एक हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी थी तो हमने उस प्रोडक्शन को किस तरह से इम्प्रूव करके बढ़ाया है। मतलब अगर सपोज़ हमारी पॉपुलेशन एक टाइम पे 1 लाख थी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से सही था। बट जब हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती चली गई तो उसके साथ साथ हमने अपना प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया है, किस तरह से इम्प्रूव किया, किस तरह से वैरायटी ऑफ थिंग्स हमने लेके आए हैं, ये चैप्टर बेसिकली उसके बारे में था। So I hope you have got all the information, and still if you have any doubt regarding this you can ask me anytime. Thank you for the day.